Good morning, everyone, and welcome to the class. Now we are in RT3 paper 6, and in this we have this chapter around one party dominance. And in the previous class, we have discussed some questions. Today, also, we will continue with questions from this chapter only. And in this, we will see there is a question which came in the year 2017 in All India. The question is, what distinguishes the dominance of the Congress party in India from the one party dominance in other countries? इसी तरह का सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है जो 2016 में आया है दिल्ली में. What distinguishes the dominance of the Congress party in India from other examples of one party dominance in other countries? तो इस क्वेश्चन का मतलब हम अभी पहले समझेंगे. पहले इसको क्वेश्चन को लिखेंगे हम. ठीक है. द क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड the dominance of the Congress party in India from the one party dominance in other countries. It's a 4-mark question, and this question came in the year 2017 All India, and in Delhi it came in the year 2016. So first of all, try to understand the question. The question is कि simple question ये है कि what is the difference between the dominance of the Congress party in India and the dominance of one party in other countries. ऐसा नहीं है कि it was only in India that one party was dominating in the politics. Congress was dominating in the politics of the country in the first 3 general elections we have seen. So it's not like that कि only India was a country where this single party dominance was going on. Actually, what we find that in most of the countries, the same type of condition was there, that a single party was dominating the national politics. But here what we find that जो dominance कांग्रेस का था और कई सारे अदर कंट्रीज में जो डिफरेंट पार्टीज का डोमिनेंस था, सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, उन दोनों के नेचर में बेसिक डिफरेंस था. और उसी डिफरेंस को आपसे पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस इंडिया में था और अदर कंट्रीज में भी सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, उन दोनों के डोमिनेंस के बीच में क्या फर्क है, वो कौन सी चीज़ है जो कांग्रेस के डोमिनेंस को अदर कंट्रीज में सिंगल पार्टी डोमिनेंस से डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है. ठीक है. तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो क्या बताना होगा, जो इंट्रोडक्शन हमारा होगा वो यही होगा कि कांग्रेस के डोमिनेंस को हम बताएंगे. जो शुरू के 3 जनरल इलेक्शंस हुए हैं, उन जनरल इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया है उसमें उसको हम एक उसका एसेंस जो है वो दिखाएंगे कि तीनों जनरल इलेक्शन में अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो सीट रहा है वो 360 के अबव ही रहा है. जैसे फर्स्ट इलेक्शन में तो ये 364 था, एंड देन इन द सेकेंड इलेक्शन इट वाज 371 एंड इन द थर्ड इलेक्शन इट वाज 361. तो एक जनरलाइज्ड हम कह सकते हैं कि ये
360 से अबव ही रहा है तीनों इलेक्शंस में, तो इसको हम वन पार्टी डोमिनेंस कहेंगे, बिकॉज अदर पार्टीज वर देयर बट स्टिल कांग्रेस वाज विनिंग द इलेक्शंस। और ये सिर्फ इलेक्शन ही विन नहीं कर रही थी, बल्कि इसका नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि डोमिनेंस था। ठीक है, तो ये सिंगल पार्टी इंडिया में कांग्रेस के डोमिनेंस को हम बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपका होगा डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो डेटा है वो हम दे देते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। इट वाज ट्रूली डेमोक्रेटिक बिकॉज in our country, our constitution adopted the multi-party system, and not only this, we have intervals at we have elections at regular intervals, and elections were very much free and fair. Not only this, our media, our judiciary, everything is free and independent and impartial. So in this way, the nature of the dominance of Congress in India was totally democratic. But if we compare this dominance of one party, which was there in other countries also, we see that in other countries the nature of this dominance was different. If we see in China, like China, what we find that in China there was a single party system. Single party system means ki there cannot be more than one parties according to the constitution of China. There can be only one party according to the constitution of China, and this makes China an undemocratic country, because अगर country में एक ही पार्टी होगा तो ऑब्वियसली उस एक ही पार्टी का डोमिनेंस होगा। इट इज तो नेचुरल आउटकम ना। अगर सिंगल पार्टी ही है तो ऑब्वियसली उस सिंगल पार्टी का ही डोमिनेंस होगा। किसी और पार्टी की डोमिनेंस की बात कैसे आएगी जब पार्टी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है? तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ डोमिनेंस ऑफ अदर पार्टी, या किसी और पार्टी को कुछ जगह मिलेगी? तो इस तरह का जो कंडीशन है वो हम और भी कई कंट्रीज में देखते हैं, लाइक क्यूबा है, सीरिया है। इन कंट्रीज में सिंगल पार्टी सिस्टम था। तो सिंगल पार्टी के रहते हुए हम ये वहां पर सिंगल पार्टी के कारण जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी होगा, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम के होते हुए भी डोमिनेंस का होना बहुत बड़ी बात है। और जब सिंगल पार्टी सिस्टम है तब तो डोमिनेंस होगा ही एक पार्टी का, है ना। तो इसको हम कंपेयर करेंगे चाइना, सीरिया और क्यूबा से। उसके अलावे भी कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक अगर हम म्यांमार को देखते हैं, बेलारूस को देखते हैं, इजिप्ट को देखते हैं, एरिट्रिया है, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पर कि मिलिट्री मेजर्स अपनाए गए हैं, मिलिट्री रूल रहा है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में क्या हो रहा है कि वन पार्टी का ही रूल चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट मिलिट्री रूल। तो इस तरह का भी कंडीशन इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो वन पार्टी डोमिनेंस है उसके पीछे कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेटिक फोर्स, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, पॉपुलरली सपोर्टेड गवर्नमेंट इंडिया में बन रही थी जब भी हम कांग्रेस की गवर्नमेंट हमने देखा। तो ये डिफरेंस हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं, लाइक मैक्सिको है, देन साउथ कोरिया है, ताइवान है। ये ऐसे कंट्री हैं जो कि यहाँ पर भी वन पार्टी का ही डोमिनेंस रहा है, लेकिन इन कंट्रीज में हम कहेंगे कि वन पार्टी का डोमिनेंस जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक वे में हुआ। उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे? क्योंकि इन कंट्रीज में अपोजिशन पार्टी को क्रश किया जाता है। रहेगी अपोजिशन पार्टीज, बट उनको फ्लरिश नहीं करने दिया जाता है, उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इन कंट्रीज की यही खासियत है। मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की टोटली कंट्रोल में रहती है, जुडिशियरी गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। तो ऐसे डेमोक्रेसी को हम रियल डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। और जब इस तरह की डेमोक्रेसी होगी जहां मीडिया फ्री नहीं है, जहां अपोजिशन को एक्टिविटीज जो है अपोजिशन की वो फ्री नहीं हो रहे हैं, और इसके अलावे हम ये भी देख रहे हैं कि जुडिशियरी तक फ्री नहीं है, तो इसको हम
बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक है। तो वैसे कंट्री में अगर सिंगल पार्टी का डोमिनेंस हो रहा है तो वो नेचुरल है, जो भी गवर्निंग पार्टी है वही पार्टी रूल करती रहेगी वहाँ पे, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग पार्टी है। बट इंडिया में वो कंडीशन नहीं थी, तो यही हमको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना होगा। सो हमने इंट्रोडक्शन में डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस को एक्सप्लेन कर दिया है, और उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट ऑफ द आंसर होगा उसमें हमें किन किन पॉइंट्स को लिखना है वो यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा होगा उसमें हम ये लिखेंगे कि इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, व्हाट इज द नेचर, द नेचर इज डेमोक्रेटिक। तो हमारे आंसर का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि हम डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस बताएंगे, है ना। कांग्रेस के डोमिनेंस का डेमोक्रेटिक नेचर है। कैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो डेमोक्रेटिक है, किस बेसिस पे हम कहेंगे, बिकॉज वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, independent media and judicial। ये चीजें हैं जो हमारे गवर्नमेंट को, कंट्री को टोटली डेमोक्रेटिक बनाती है। और इस तरह के डेमोक्रेटिक सिचुएशंस के अंदर रहते हुए एक सिंगल पार्टी को डोमिनेंट पोजीशन मिल रही है। दिस इज द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, जो कि इंडिया में था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग एग्जांपल्स देंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज का हमने देखा कि अगर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ की उसी तरह का डोमिनेंस था जिस तरह का कांग्रेस का डोमिनेंस था, बट उन कंट्रीज की कंडीशंस डिफरेंट है, जैसे चाइना, क्यूबा और सीरिया। इन कंट्रीज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो अगर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो फिर क्या है, तो दैट इफ सिंगल पार्टी इज देयर देन द गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो इसमें जो डोमिनेंस आ रहा है वो कैसा डोमिनेंस है, दैट इज अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और भी कंट्रीज का हम लोग एग्जांपल लेंगे, लाइक म्यांमार, बेलारूस, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं। अब जो इजिप्ट है, अब इजिप्ट में भी अभी डेमोक्रेटिक कंट्री वो बन चुका है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पहले की बात अगर देखें तो इजिप्ट में उसी तरह का रूल था, काफी समय तक रहा था। तो ये कंट्रीज है जहां पर की मिलिट्री रूल हमें देखने को मिलती है। मिलिट्री फोर्स इज बिहाइंड द गवर्नमेंट, और जो भी मिलिट्री रूल है उसमें क्या हुआ है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली है। पार्टी इज देयर, इलेक्शंस भी हो रहे हैं रेगुलर, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज मिलिट्री फोर्स जो है वो गवर्नमेंट के पीछे है। जो पॉलिटिकल पार्टी का एक बस कवरिंग लगा दिया गया है कि हम डेमोक्रेसी हैं, एक्चुअली वो मिलिट्री रूल ही होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे कंट्रीज जो हैं वहाँ पर क्या है कि
सब कुछ है वहाँ पर, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेसी रियल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो जो जिस पार्टी की जो पार्टी रूलिंग होती है, बस वही पार्टी जो है वो हर समय जीतती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो टोटली कंट्रोल में है पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के, वो उसको मिस यूज करती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे कहाँ कहाँ है? मेक्सिको में, मेक्सिको, ताइवान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, लैक ऑफ रियल डेमोक्रेसी। तो यही है हमारे सिंगल पार्टी डोमिनेंस में और अदर कंट्रीज के सिंगल पार्टी डोमिनेंस में फर्क। कहीं पर सिंगल पार्टी सिस्टम है तो कहीं पर मिलिट्री फोर्स गवर्नमेंट के पीछे है, कहीं पर अपोजिशन को क्रश किया जा रहा है, मीडिया को फ्री नहीं रखा गया है, जुडिशरी को फ्री नहीं रखा गया। तो वैसे कंडीशन में जो सिंगल पार्टी का डोमिनेंस होगा वो टोटली अनडेमोक्रेटिक होगा, और इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो डेमोक्रेटिक था। ठीक है, ये इसको हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, ये तो सब हम जान रहे हैं, बट व्हाट वाज द रीजन, what were the reason? You have to explain any 4 reason because it is 4 mark question, तो 4 reasons पूछा गया। इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है, describe any 4 factors which were responsible for the dominance of the Congress party in India till 1967। 1967 में 4th जनरल इलेक्शन होता है, तो 1967 के 4th जनरल इलेक्शन के पहले तक का जो समय है उसको माना जाता है कि कांग्रेस के डोमिनेंस का टाइम था। तो क्यों, अगर कांग्रेस का डोमिनेंस था तो उसके पीछे क्या रीजन है, आपको 4 रीजंस बताने हैं। ठीक है, ये बहुत ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरह का परेशानी वाली चीज नहीं है, बस यू शुड नो कि हाँ क्या कॉजेस थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, और ये ऑल इंडिया 2016 में आया है, और उसके बाद दिल्ली 2013 एंड 2011 दोनों में आया है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस for the dominance of the Congress party in the first 3 general election। इसमें बहुत सारे रीजंस आएंगे, पूछा गया है 4 रीजन, तो आपको 4 रीजन ही बताना है, बट 4 से ज़्यादा भी आप बता सकते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन आया है 2016 ऑल इंडिया, और इसके अलावा दिल्ली 2013 एंड 2011। ठीक है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें रीजंस बताने हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट रीजन
for you can say the dominance of the Congress was not a party. Actually, it was a coalition of different social groups and different ideologies. As we have discussed when we were discussing the chapter, this was a very important portion of the chapter ki how Congress was a coalition of different social groups and different ideologies. तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि जो न सिर्फ डिफरेंट बल्कि जो अपोजिट सोशल ग्रुप्स थे वो भी इसके मेंबर थे. लाइक मिल मालिक भी कांग्रेस का मेंबर था और मजदूर भी कांग्रेस का मेंबर था. लैंडलेस लेबरर भी कांग्रेस के मेंबर हैं और जमींदार भी कांग्रेस के मेंबर हैं. अपर कास्ट भी कांग्रेस का मेंबर है, लोअर कास्ट भी कांग्रेस का मेंबर है. तो ये जो इसका जो हम देख रहे हैं कि सोशल ग्रुप्स का ये एक कॉलिशन था जिसमें हर सोशल ग्रुप जो था वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड था. तो इस कारण से क्या हो रहा है, ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में है उससे उसका बेस सपोर्ट बेस बढ़ गया था एंड दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर इट्स डोमिनेंस. क्योंकि उस कारण सपोर्ट बेस बढ़ने से वोट मिलेंगे और वोट मिलेगा तो उसका डोमिनेंस होगा. दूसरी रीज़न जो हम इसमें इसी में इसके एक ही रीज़न के अंदर ही इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी था. क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी जैसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को इसमें जगह मिली हुई थी. कैपिटलिस्ट जो थिंकिंग के लोग थे और उनको भी यहाँ वो भी इसके मेंबर थे. जो सोशलिस्ट थिंकर के लोग थे वो भी इसके मेंबर थे. इंडिविजुअलिज्म की जो बात कर रहे हैं वो भी इसके मेंबर है, सोशलिज्म की जो बात कर रहे हैं वो भी इसके मेंबर है. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को भी इसमें जगह मिली हुई थी. तो इससे क्या हुआ कि इसके कारण भी इसका सपोर्ट बेस जो है वो बढ़ गया था. लेफ्टिस्ट भी इसके मेंबर थे, राइटिस्ट भी मेंबर है, मॉडरेट्स भी मेंबर है, एक्सट्रीमिस्ट भी मेंबर. तो इस कारण से जो आइडियोलॉजिकल बेस भी इसका बढ़ गया तो इससे सपोर्ट बढ़ता है और इसको ये एडवांटेज मिलता है डोमिनेंस का, पॉपुलैरिटी. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और ये इतना इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इस पर सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन कांग्रेस एज अ कोalition ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप. ठीक है, तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा जो दूसरा रीज़न हम देंगे कि कांग्रेस के डोमिनेंस का और क्या रीज़न था, दूसरा रीज़न हम ये देंगे कि कांग्रेस जो है वो उसके अंदर टॉलरेंस जो थी बहुत ज़्यादा था और फैक्शंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था. टॉलरेंस था मतलब कि अगर कोई अपोजिट व्यू कोई मेंबर रख रहा है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो कि मेन जो लीडरशिप है कांग्रेस की उससे बिल्कुल ही अपोजिट व्यू रख रहा है तो भी उसको टॉलरेट किया जाता था. उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता था और इस कारण से फैक्शनलिज्म जो है उसको काफ़ी ज़्यादा था कांग्रेस के अंदर. और कांग्रेस ने कभी भी फैक्शनलिज्म को क्रश करने की कोशिश नहीं की बल्कि फैक्शनलिज्म को एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में प्रमोट किया गया. क्यों प्रमोट किया गया? क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा था ना कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी थी जिसमें कि हर आइडियोलॉजी को जगह दिया जा रहा था. अगर विरोध का भावना उठ भी रहा था किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसको हम फैक्शनलिज्म की बात जहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप अंदर में बन गया कांग्रेस के अंदर जो कि सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट जा रहा है, तो भी उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाता था और ना ही वो ग्रुप ही ऐसा होता था कि वो पार्टी को छोड़ करके चला जाए और नई पार्टी बना ले. ऐसा भी वो ना वो चाहता था ना कांग्रेस उसको निकालती थी. क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि अपोजिशन कांग्रेस के बाहर नहीं होकर के कांग्रेस के अंदर ही था. दैट वाज कांग्रेस सिस्टम विच वी हैव डिस्कस्ड, है ना. ये कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी, इट वाज अ सिस्टम जिसके अंदर रूलिंग पार्टी भी था, अपोजिशन पार्टी भी था. इतने सारे फैक्शंस थे अंदर के ही और वो सारे फैक्शंस को सेटिस्फाई करने का भी कोशिश किया जाता था सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से. और जो फैक्शन बनाने वाले थे उनके भी मन में ये था कि हम कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस के अंदर ही हम इस तरह के अपने एक पहचान बना करके ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेना चाहते थे. तो दैट वाज मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन. तो इस तरह से मैनेज किया गया फैक्शंस को
कि इसका जो सपोर्ट बेस था वो और भी बढ़ता गया और अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता था। अपोजिशन पार्टी बनने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी के लिए ये जरूरी है कि कोई उसके पास मुद्दा तो होना चाहिए। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता था जिसको कि वो लेकर के कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो सके। अगर वो कोई इश्यू लेकर के कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी भी होती थी तो क्या होता था, कांग्रेस के अंदर तो वो इश्यू पहले से ही उसके बारे में बात हो रही, तो फिर उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता था। तो ये कारण था कि कांग्रेस में इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया, फ्रैक्शंस को इस तरह से मैनेज किया गया कि अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और जब अपोजिशन वीक होगी तो इसका मतलब क्या है, सिंगल वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये हमारा दूसरा रीज़न बनता है। तीसरा रीज़न जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है एफपीटीपी सिस्टम, जो कि हमारी कंट्री में हमने 11th में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया और इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में जीतने के लिए मिनिमम कितने वोट्स चाहिए, वो सब कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट होते हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विनर हो जाता है, चाहे वो सबसे ज़्यादा कितना भी कम क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो इस कारण से ये जो एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट किया गया उसके कारण कांग्रेस को एडवांटेज मिला। अगर हम एनालाइज करें कांग्रेस रिजल्ट्स को, जो इंडिया में रिजल्ट्स इलेक्शंस के रिजल्ट हुए, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कई बार कांग्रेस को 80% के अराउंड सीट्स मिल रहे हैं और अगर हम देखें तो वोट में उसकी शेयरिंग कितनी है, 48%। तो 80% सीट मिल रहा है बट वोट में शेयरिंग 48% है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है करीब 30% इसका, वो क्यों आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। अगर हमने पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये ऐसा वेरिएशन नहीं आता। अगर आपको 48% वोट मिला है तो आपको पार्लियामेंट में 48% ही सीट मिलेगा। तो ये चीज हमने जो अडॉप्ट किया एफपीटीपी सिस्टम को, दैट वेंट इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। जो भी बड़ी पार्टी होगी उसके वो फेवर में जाएगी और छोटी पार्टी के वो अगेंस्ट हो जाती है ना। तो ये 3 रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा भी और रीजन है जिसको हम अभी बता रहे हैं। हमारी कंट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, दैट स्ट्रगल वॉज डन इन द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस वॉज द लीडर, है ना। और कांग्रेस का जो बना कांग्रेस, वो 1885 में ही कांग्रेस बन गया था। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग था। कांग्रेस ये देखते हैं कि मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ पड़ा था। प्रदेश कांग्रेस कमिटीज बनी हुई थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अलावा मतलब हर प्रदेश में, हर प्रोविंसेस में, हर रीजन में कांग्रेस कमेटी बनी हुई थी। तो ये क्या है, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो इसने रोल प्ले किया, लीडरशिप जो दिया, उसके कारण क्या हुआ, लोगों में कांग्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मतलब उनको ये था कि हमें जो आज़ादी मिली है वो कांग्रेस के कारण ही मिली। और कांग्रेस में ऐसे लीडर्स थे जिनको कि लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, पंडित नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस तरह के जो लीडर्स थे उनका जो रिस्पेक्ट लोगों के नज़र में बहुत ज़्यादा था। इस रिस्पेक्ट के कारण क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी होना नेचुरल था। तो अब हम बस इन पॉइंट्स को सम अप करेंगे। पहला जो पॉइंट हम लेंगे, इसको हम ये 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें हमने दिया वो है कोलिशन ऑफ सोशल एंड coalition of social and ideological groups. Second is tolerance management of faction. तीसरा हम इसमें देंगे FPTP
सिस्टम, यू नीड टू एलाबोरेट द पॉइंट्स, है ना, आपको पॉइंट्स को एलाबोरेट करना होगा। फोर्थ हम देंगे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करेंगे कि एक तरफ तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था, इतनी पुरानी पार्टी थी, ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, प्रदेश कांग्रेस कमिटीज बनी थी, और दूसरी तरफ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि बहुत लेटर स्टेज में जो आए 20th सेंचुरी में, जो जिनका सेटअप हुए जो, तो उनका और कांग्रेस का हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लीडरशिप इन नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें जो इन्होंने लीडरशिप दिया, दैट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस, एंड इन दिस वे कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इट्स सुप्रीमेसी, है ना। तो यही मेन रीजंस है जिसके कारण हम कहेंगे कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो रहा 1967 तक, ठीक है। तो ये हमारा आज का हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे।